हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ही होंगे। तो सब घरों के अंदर ही होंगे, सब सुरक्षित होंगे। हमें बार बार बाहर नहीं जाना है और अपने घर में रहकर ही पूरा काम करना है। अपना होमवर्क किसी भी कॉपी में करते रहना है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉलिंग नंबर दिया है, उस पर आपने कांटेक्ट करना है। और आपका मैंने क्लास 7 का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो उससे ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे आप हमें उससे रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे। अपना नाम लिख करके मुझे सेंड करें, मैं आपको आपके क्लास 7 के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन ऐड कर दूँगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या होंगी, कुछ जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है स्कूल से रिलेटेड, हम उनको सेंड करेंगे और आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन उससे और इजीली हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके नंबर भी उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अदर जो क्वेरीज स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसमें सब अपडेट करते रहेंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन विद आवर व्हाट्सएप ग्रुप क्लास 7 सेशन 2021। Yesterday we have discussed about the exercise of third chapter. Today we will discuss about the chapter number 4 of the agriculture, air. So as you know, the we are living in the atmosphere, and the atmosphere is known as the our earth is surrounded by a huge blanket of air is called atmosphere. So firstly, what is air? The blowing wind is known as the wind. The blowing wind is known as the air, and the earth is surrounded by a huge blanket of air known as the atmosphere. Sometimes some air is also blow, somewhere speedily, somewhere slowly, and it is also float in the atmosphere. So the all living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effect of the sun rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen. And so we have the combination of the gases. Firstly, composition of the atmosphere. Composition of the atmosphere. As you know, atmosphere is the composition of the gases. एटमॉस्फेयर इज द कंपोजिशन ऑफ द गैसेज। एटमॉस्फेयर में क्या है, सारी गैसेज हैं, गैसों से बना हुआ है ये। सी दिस पाई चार्ट, आपने क्या करना है, ये पाई चार्ट को देखना है। पाई चार्ट देख कर क्या करेंगे, हियर इज सी द क्वांटिटी। हमें क्या करना है, ये क्वांटिटी देखनी है एक पाई चार्ट में। सी हियर नाइट्रोजन इज द हाइस्ट लिमिट। हाइस्ट लिमिट किसकी, इसमें नाइट्रोजन है 78% है, and the oxygen contains 21% in the atmosphere, while most human beings totally depend on the oxygen. ये हम सबको पता है ना। और नाइट्रोजन 78% है, while कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो 0.03% है। अब हमें यहाँ क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ऑर्गन 0.93% एंड अदर गैसेज 0.4% है। सो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नाइट्रोजन एंड मे बी आस्क्ड which gas found in the atmosphere in the maximum quantity. So your answer will be the nitrogen. What will be your answer? Nitrogen. So what is the percentage of the oxygen in the atmosphere? 21 percentage of oxygen in the atmosphere is 21%. So other gases are known as the
helium, ozone, argon, hydrogen. These are found in the less quantity, very less quantity you can say. Okay, and see here in the box, what is it? Yes, the carbon dioxide. Do you know carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by the trapping of the heat radiated from the earth. It means whenever atmosphere carbon dioxide increase or emerge, then it will be the causes of the greenhouse effects. Okay. It is therefore called a greenhouse gas, and without it, the earth would have been too cold to live in. Sure. It means it is hot. It is hot. So here, see here, without it, the earth would have been too cold to live in. However, when its level in the atmosphere increase due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase. So what is atmosphere? Atmosphere increase due to the factory smoke of car fumes. Car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. That is called global warming. It means whenever temperature rise in the atmosphere, this is called the global warming. This rise the temperature caused the snow in coldest part of the world is melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place, leading to extinction of some plant and animals in the long run. So, what is the causes of the global warming? The increasing temperature of the earth is known as the global warming, and due to the global warming, the glaciers are melting, and when the glaciers are melting, it causes the floods in the coastal areas, and it is also cause of the major change in the climates. And due to the global warming, some species of the animals and plants are being extinct. Extinct, you know, खत्म होना, destroy हो जाना. EXTINCTION, extinct. So what is the global warming? So global warming क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है. इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि हमारे जो माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और सी लेवल क्या हो रहा है, उससे बढ़ रहा है. इसलिए क्या होता है, सी के जो आसपास के एरियाज हैं वो क्या है, सिंकिंग वाली कंडीशन में आ गए हैं, डूबने वाली कंडीशन में आ गए हैं. कौन सी कंडीशन में आ गए हैं? सिंकिंग, डूबने वाली कंडीशन में. अच्छा, और फिर उसके बाद फिर क्या हो गया है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो गया है, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं एनिमल्स और प्लांट्स की जो लोअर टेम्परेचर में इंक्रीज करती हैं. जो क्या करती हैं? लोअर टेम्परेचर में इंक्रीज करती हैं. तो उससे क्या हो गया है, ऐसी स्पीसीज क्या होने लगी हैं, एक्सटिंक्ट होने लगी हैं, डिस्ट्रॉय होने लगी, नष्ट होने लगी हैं. ओके, सो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें एटमॉस्फेयर को बचाना होगा इस चीज़ से. हैं, अब बात करते हैं. तो नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की बात कर रहे थे. सो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? ऑक्सीजन हम सबके लिए लिवलीहुड का काम कर रही है, जीवनदायिनी का काम कर रही है. ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut tree, then this balance gets disturbed. So here is the green plants produce oxygen. Here is the green plants produce oxygen during the photosynthesis. Green plants produce oxygen during the photosynthesis. Okay. अब प्लांट, इसका मतलब क्या होगा, प्लांट होंगे तो ऑक्सीजन आती रहेगी, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती रहेगी. तो
अगर ये पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन बननी कम हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट ज़्यादा हो जाएगी, अदर गैसेज की लिमिट ज़्यादा हो जाएगी। सॉरी। नेक्स्ट, carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Human or animals release carbon dioxide. So, one more point, whenever green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपके लिए क्या है, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या कर रहे हैं, ये भी अपने आप में, ग्रीन प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। एज वी आर यूजिंग द ऑक्सीजन एंड वी आर रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनिमल्स आर यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन। अब हम क्या करते हैं, हम उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और जो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अपने भोजन को बनाने में। सो नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। इसका मतलब क्या हो गया, जब पेड़ रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी उसमें, वो पेड़ पौधे उसका यूज़ करते रहेंगे। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ से वहाँ यूज होगी, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी। ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी तो क्या होगा, ह्यूमन बींग्स के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जैसे However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of the tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the as a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. अब क्या कर रहा है, जब क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जो हमारे फैक्ट्रीज का स्मॉग है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट बहुत ज़्यादा हो जा रही है, पेड़ कम होते जा रहे हैं। तो क्या हो गया, उसको ऑब्जर्व करने वाला कोई भी नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन करने वाला कोई नहीं है। आप अपने एक मैथ का एग्जाम्पल देखेंगे, पता चला क्या हो गया, देर आर ओनली 100 और 200 स्टूडेंट्स, बट द फूड इज़ रेडी फॉर द 1000 स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, 800 लोगों का खाना हमेशा बेकार जाएगा। तो 800 लोगों का खाना हमेशा बेकार होगा तो क्या होगा, वो फेंकना पड़ेगा। उससे क्या होगा, डिफरेंट डिजीजेज पैदा हो जाएंगी, बीमारियाँ फैलने लग जाएंगी। तो फिर उनकी रोकथाम करना क्या हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है, अगर हमारे पास 200 स्टूडेंट हैं तो उनके लिए क्या है, 200 के लिए क्या बनेगा, खाना बनना चाहिए। ऐसे यहाँ पर है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में जो पेड़ पौधे कम हो गए हैं और ह्यूमन बींग्स की संख्या और कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट का यूज़ कौन कर रहा है, प्लांट से कर रहे हैं। प्लांट ही नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हमारे एटमॉस्फेयर में ही बनी रहेगी। उससे क्या होगा, हमें फिर नुकसान होगा। सो इसलिए क्या है, पेड़ों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सो सेफ ट्रीज, प्लांट ट्रीज। तो पौधे आपने क्या करने हैं, आपने पौधे लगा के रखने हैं। सो हियर इट, डू यू नो, व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, दैट इज व्हाई इट tends to sink down. When hot air rises, cold all air from surrounding area rushes there is to fill in the gap. That is how air circulation takes place. It means when the gas is warm, it is the lighter in weight. जब गर्म होगी हवा तो क्या होगी, हवा आसमान में रहेगी, वो हल्की होगी। और जो ठंडी हवा होगी तो भारी कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी, वो सरफेस पर रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, तो गर्म हवा कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म है, हमारी गर्म है कहा था ना अभी। तो इसका मतलब क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में रहेगी, ऊपर रहेगी। इसका मतलब उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो इससे क्या कह रहा है, इससे क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस पैदा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो हमारा डिसबैलेंस होता है, वेदर उससे क्या होने लगता है, इफेक्ट होने लगता है। सो हियर इज द सम ऑफ द topics for the discussion. Top scientists offer way out of global warming. This is the
वार्मिंग, अनस्टॉपेबल, ग्लोबल वार्मिंग, प्रोजेक्शन, ये सब क्या है आपको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्या दिए गए हैं, ये न्यूज़ पेपर की हेडलाइंस है। तो आप क्या करेंगे, अपने आसपास भी देखेंगे, कभी अपने पुराने न्यूज़पेपर्स में, आजकल तो क्या हो रहा है सब कोरोना का ही न्यूज़ आ रहा है, उससे भी, लेकिन इस कोरोना में भी आपने देखना है कि व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ फॉर द एटमॉस्फेयर। इसमें भी हमारी क्या है, आप देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, फैक्ट्री सब बंद हैं, और जो फ्यूल जो इंक्रीज हो रहा था वो भी सब आजकल क्या हो गया, कम हो गया है। इसलिए हमें क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत हद तक ओजोन लेयर की जो होल है वो कम होने लगी है। तो आप क्या करेंगे, ऐसी कुछ आपके पास न्यूज़ हैं तो उनकी हाइलाइट्स ऐसे क्या करें, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, हिंदी का न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, जो भी आपके पास न्यूज़पेपर है उसे कटिंग से आप रखेंगे, और उसको क्या करेंगे, एक आप कॉपी लेकर के उसके पेज में उसको पेस्ट कर देंगे ऐसे ही। तो उसको आप क्या कर, ऐसा ही टाइप का एक प्रोजेक्ट टाइप बना करके आप क्या करेंगे, स्कूल्स में लाएंगे। स्कूल में क्या होगा, फिर जब स्कूल खुलेगा हम इस चीज़ को देखेंगे। तो क्या होगा आपका प्रोजेक्ट, सर्च द न्यूज़ रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग द वैकेशंस ऑफ द कोविड-19। इस वैकेशन में आपने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इनके हाइलाइट्स है, जैसे यहाँ पर दिखा रखी है आपको, ऐसी टाइप की आपने खबरें क्या करनी है, इनकी कटिंग से लेके आनी है, आपने उसमें पेस्ट करके लाना है। तब हम कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, रियली यू आर यूजिंग योर न्यूज़पेपर्स। तब पता चलेगा कि आपका न्यूज़पेपर कितना अच्छा यूज हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, सी है, और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज आर द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड exosphere. So you have to learn these layers. So layers are the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Exosphere means highest layer of the earth. Exosphere means highest layer of the earth. See here, firstly in this diagram we have the from the bottom to top. On the bottom there is the troposphere. Troposphere, also our Mount Everest is in the troposphere, is the earth surface. Sorry. See left side, here is the diagram, and here is the kilometers. These are the kilometers, it means troposphere up to 10 kilometers, and here is the stratosphere. This is the stratosphere. It means our ozone layer is situated in the stratosphere, and aeroplanes are also flying in the stratosphere. Then stratosphere up to 45 kilometer, and mesosphere, after the stratosphere there is the mesosphere. Mesosphere is up to 85 kilometers. Mesosphere up to 85 kilometers. Then thermosphere, thermosphere up to 105 kilometers, and above 100 kilometer it is the exosphere, it is almost up to 400 kilometer. Okay, now we discuss about the one by one about these layers. So troposphere, this layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometer. The air we breathe exists here. Almost the weather phenomena like rainfall, fog and hailstone occurs in this layer. So it means the height of the troposphere is up to 13 kilometer, you can say. So the air we breathe, oxygen, we find this this troposphere, and all the weather phenomena, weather phenomena जानते हैं, जितने भी वेदर से रिलेटेड इवेंट्स हैं, जो भी चेंजेज हैं वो कहाँ होते हैं, केवल ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। अब वेदर से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं होती हैं, हेल स्टोनिंग होती है, ओले पड़ना, और रेनफॉल होती है, कोहरा हो जाता है, फॉग होगा जाता है कभी, हाँ, और स्नो फॉलिंग होती है। ये सब कहाँ होती हैं, दीज ऑल आर हैपन्स इन द ट्रोपोस्फेयर। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारी ये रेनफॉल है, फॉग है,
हेल स्टोनिंग है, स्नो फॉलिंग है, ये कौन सी लेयर में होती हैं ये सब चीज़ें? दीज ऑल आर हैपन इन द ट्रोपोस्फेयर ऑफ द अर्थ। Okay. Next is the stratosphere. Stratosphere. So above the troposphere, the line above the troposphere, we find the stratosphere. It extend up to 50 kilometers. It extend up to how many kilometers? 50 kilometers. This layer is almost free from clouds and associated with weather phenomena, making conditions most ideal for the flying airplanes. अभी हमने देखा ना इसमें कि जो स्ट्रेटोस्फेयर में था, हमने अब क्या दिखा था, एक एरोप्लेन दिखाया था। एरोप्लेन दिखाया था तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो भी क्या होती है वेदर से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती इसमें कुछ भी नहीं होती, ये सब फ्री होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारे जो एरोप्लेन्स हैं उनके उड़ने के लिए क्या हो गया, बेस्ट कंडीशन है कंपेयर टू द ट्रोपोस्फियर। तो इसका मतलब यहाँ पर और ओजोन लेयर भी इसमें पाई गई है, ये भी हमने देखा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो हार्मफुल गैसेज हैं या अबव टेम्परेचर है उससे बचाने वाला कौन है, केवल स्ट्रेटोस्फेयर है। कौन है, स्ट्रेटोस्फेयर है। नेक्स्ट इज द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इट लाइज above the stratosphere. It extends up to the height of 80 or 85 kilometer. Meteorites burn up in this layer on entering from the space. ओके, अब हम क्या कहता है, जो मेटेरियट्स हैं क्या कर रहे हैं, सब इसी एरिया में बर्न होते हैं, कहता है मेसोस्फेयर। सो तो हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे लिए ट्रोपोस्फेयर इम्पोर्टेंट है, और हेलीकॉप्टर के हिसाब से क्या है, उसके लिए स्ट्रेटोस्फेयर है। नेक्स्ट इज द थर्मोस्फेयर। दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ द अर्थ। ओके, द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट्स। अब थर्मोस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हाइट भी बढ़ रही है। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। थर्मोस्फेयर में क्या है, आइनोस्फेयर भी है। इट एक्सटेंड बिटवीन द 800 to 400 kilometer. Okay, this layer help us to radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. It means जो सैटेलाइट्स होते हैं और वो सब आइनोस्फेयर में पाए जाते हैं। थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर जो रेडियो वेव से हैं, और हमारे जो टीवी के सिग्नल्स आते हैं, मोबाइल के सिग्नल्स आते हैं, सैटेलाइट सिस्टम है, उस वो कहाँ सेट किया गया है, वो थर्मोस्फेयर में सेट किया गया है। कहाँ सेट किया गया है, थर्मोस्फेयर में सेट किया गया है। सो हाईलाइट दिस लाइन, दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। इनफैक्ट रेडियो वेव से ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ है। ओके, मे बी दे आस्क क्वेश्चन आस्क टू यू। कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी जो हम एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर हमारे जो सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ी है, या टीवी के सिग्नल से जुड़ी है, मोबाइल के सिग्नल से जुड़ी हुई है। तो कौन सी लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर का है लगभग 150 किलोमीटर हमसे ऊपर है, अप टू ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर। इसमें क्या होता है, जब कभी हम क्या करते हैं, मोबाइल में सिग्नल्स मिलाते हैं, तो वहाँ पर क्या करता हो जो भी हम जब भी मोबाइल के कोई सिग्नल कोई कॉल करते हैं, तो फर्स्टली क्या होते हैं, जो वेव से होते हैं वो कहाँ जाती है, थर्मोस्फेयर में जाती है, जहाँ उसका सैटेलाइट सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर लाखों करोड़ों सेट क्या होंगे, एक साथ जुड़े होंगे, जो वहाँ सिस्टम इतने एक साथ काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सब सिस्टम एक साथ काम करेंगे तो कॉल हमारी क्या होगी, उतनी लेट कनेक्ट होगी। इसलिए क्या होगा, इन दैट इवनिंग टाइम यू कैन सी द मोबाइल नेटवर्क इज़ अनअवेलेबल टू कनेक्ट ईजली। देखा है ना, कभी कभी जब हम इवनिंग टाइम में क्या करेंगे, रात को लगभग बिफोर 9 PM से पहले अगर हम फ़ोन लगाते हैं तो इतनी जल्दी नहीं लगता, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, सारे लोग फ़ोन पर लगे रहते हैं, सब फ़ोन पर बात करना है। अगर मॉर्निंग टाइम में लगाएंगे तो कम लोग, फ़ोन हमारा क्या होता है उसमें जल्दी कनेक्ट हो जाता है, कम लोग उसमें यूज़ करते हैं। तो अब ये सब कहाँ जा रहे हैं, इसकी वेब से, सारे फ़ोन्स की वेब से एक ही जगह जा रहे हैं, थर्मोस्फेयर में। वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारे पास आते हैं, तब क्या होता है, मोबाइल हमारा कनेक्ट होता है। नेक्स्ट इज द
Exosphere. Exosphere is the last or uppermost layer of the earth. It is the fifth layer of the earth. It is the fifth layer of the earth. The uppermost layer of the atmosphere is known as the exosphere. This layer has very thin layer. Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. तो अब यहाँ पर क्या पाई जा रही हैं? हीलियम और हाइड्रोजन गैसेज पाई जा रही हैं. हीलियम और हाइड्रोजन गैसेज पाई जा रही हैं. सो it is sufficient for today. Tomorrow we will start the next topic. Which topic? Tomorrow our topic will be the weather and climate. And once again, please connect with our WhatsApp group. नंबर मैं आपको फिर से बता दूँ, 8958004411. इस नंबर पर आप क्या करेंगे, 8958004411 पर आप क्या करेंगे, अपना व्हाट्सएप से मैसेज भेजेंगे, अपना नाम लिख के. मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट करूँगा. इट विल बी better facility for your study. Okay, I think